distinguished guest we have, Dean Sir Dr. Mishra, and professors, students, right? We have stepped into MD now, PG Karno. Currently we have across domains, बाल रोग, काय चिकित्सा, स्त्री प्रसूति, सारे हैं यहाँ पे? Okay. सारे domains वाले आप यहाँ पे हो, okay. Alright, so doctors, one thing which I would wanted to start from, right? If I look back and reflect from 5 years down the line, right, my journey, there are always two things which has kept me grounded. There are always two things which has allowed me to bring more space into the picture and move ahead with my channel, right? Which is my current state and my desired state. Okay? So very importantly, I think for everyone who is joining this particular session today for 1 hour, please pay attention. It will be very short, very crisp, to the point, and a very informative journey for each one of you who want to become someone beyond your clinic or beyond your hospital, or who want to become someone who is an MD or a MS but wants to deliver healthcare innovations to the masses. Okay? अभी मेरा क्लिनिक है, मैं मेरे क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ. लेट्स से दिस क्रेडा चौक, यहाँ के आसपास के जितने पेशेंट्स हैं, जिस भी वैरायटी के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को मैं देखता हूँ. राइट? आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर दैट these audiences which I have as patients, I cater to them. Right? When you take a step ahead, when you enter the world of entrepreneurship, you get to help like-minded patients, you get to help like-minded profiles, you get to help those kind of personas across India and globe. ठीक है? एक छोटा example होगा. But before all of this, right, I would want to understand doctors. Let's start with few of us in understanding 3 years, 4 years down the line, do you have a vision or not? Got the question? Got the question? Okay, let's start with you. Please. I think सबको सुनाई दे रहा है ऐसे ही? ठीक है? Perfect. So the जी sure. तब तक आप प्लीज कंटिन्यू करें, बताइए. सो आई रीआइटरेट माई सेल्फ, आई रिपीट माई क्वेश्चन. वेरी सिंपल. 5 years, 3 years डाउन द लाइन आपका कोई विजन होगा. जैसे 5 साल पहले आपने स्टार्ट किया BMS, राइट? यू टुक 5.5 years to go through the course, become a doctor, took 6 months, 1 year to do another, I would say, preparation for your PG exams, and then now you're here finally. You scored really well. बहुत मेहनत की आपने, right? If I'm not wrong. तो मेहनत के बाद आप यहाँ पे आज हो, करेक्ट? सो नाउ अब क्या? 3 years डाउन द लाइन यू विल बी MD, आपके नाम के आगे MD लग जाएगा. तो कोई विजन होगा आपका कि मुझे या तो क्लिनिक करना है, हॉस्पिटल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फाइन, थैंक यू सर. आप अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस करिए. मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा रुद्र भोसले. ओके. एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय UG फ्रॉम लेट BV काळे आयुर्वेद महाविद्यालय लातूर. एक्चुअली मेरा प्लान तो नहीं था PG करने का, लेकिन घर वालों ने फोर्स किया कि अच्छा है, आई वांट टू एक्चुअली जॉइन गवर्नमेंट सर्विसेज. लेकिन मैंने एग्जाम दे दी और लकीली लग गया. आफ्टर दैट आई विल वांट टू कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट जॉब्स. ओके.
Lovely answer. I think clap for her, please, guys. Akanksha ki ek baar over. Okay, sir, आप बताइए. My name is Dr. Vishnu Vijay from Bandara. I want to continue my clinical practice in order. I just want to complete MD. After that, I want to continue in lectureship. Very good, very good. ठीक है, so there are two perspectives, there are two POVs, there are two major POVs which we have in the house today. One of us wants to become a academician, lecturer, professor, right? Someday you also would want to aspire to bigger post. And on the other hand, we have Akanksha, जिनको clinic करना है, right? अपना clinic open करना है. Because MD इसलिए करना था क्योंकि family ने push किया, right? This is what your reason was. And I am sure that many of us would have much more similar profiles, right? कोई ऐसा है जिसको नॉन क्लिनिकल जॉब्स में इंटरेस्ट है, मैंने नॉन क्लिनिकल जॉब्स किए हैं, मुझे पता है मैं एमडी के बाद ऐसा कुछ करूंगा या करूंगी. See, that's what where I'm stemming to. There is a lack of awareness when it comes to non-clinical jobs, which are really good and making a difference. Okay. Now, to just start off with something like this, right? If you look at the services which I offer, right? मैं यहाँ से थोड़ा सा minuscule way में break down करता हूँ. Team management, team building, R&D, packaging, regulatory, clinical trials, project management, post-marketing surveillance, product marketing, learning and development, chief of staff, financial modeling, market research and strategy, social media marketing, digital marketing, customer support, D2C business development. What does this mean, right? This means this draws a very significant point that this is the era of startups. Startups के era में आप हेल्थ केयर में भी इनोवेशन ला सकते हो, स्पेशली सिटिंग एट द हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री आफ्टर अ BMS, बीइंग अ MD. नाउ इससे ऊपर कुछ है नहीं, राइट? Either you will do a diploma or a certificate course, but इससे ऊपर कुछ नहीं है, which means that with some direction, with some guidance, each one of you can come up with a product and sell very, very effectively. I'll tell you how. This session, one takeaway I guarantee, which you will take home, is how to sell a product. Okay? So, let's move on to the second slide. Okay. Okay. So imagine a Kaya Chikitsa doctor, right? A doctor who has done his MD from a specialization in Kaya Chikitsa. Kaya Chikitsa में क्या क्या हम देखते हैं? Normally lifestyle disorders patient बहुत easily दिखते हैं हमें, right? OPD cases में. किसी को diabetes है, किसी को hypertension है, PCOS है, thyroid है, multiple profiles, right? Imagine you sitting in the OPD daily, right? आप 3-4 महीने से OPD रोज कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, साल भर से कर रहे हो, आपको ओपीडी में एक पैटर्न दिख के आता है कि आई हैव सीन पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू सीजनलिटीज. वन सीजनलिटी एस्पेक्ट इज कि विंटर में मेरे पास इस टाइप के पेशेंट बढ़ रहे हैं, समर में मेरे पास XYZ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, समर में आई हैव गट रिलेटेड इश्यूज के पेशेंट ज्यादा, विंटर में रेस्पिरेटरी इश्यूज के पेशेंट ज्यादा आते हैं, राइट? सो यू हैव आइडेंटिफाइड अ पैटर्न. आपको पता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग अंडर प्रैक्टिसिंग समवेयर. आपको पता है कि आई विल स्टार्ट आफ्टर लर्निंग अ लॉट माय ओन, ठीक है? एंड देन यू विल कम अप विद समथिंग व्हिच इज वेरी नोबल. फॉर एग्जांपल, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समथिंग व्हिच इज अ सप्लीमेंट और अ प्रोडक्ट और अ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन. अगर मेरे पास एज अ पीडियाट्रिशियन 0 से 15 के एज ग्रुप के ऐसे बच्चे रोज आ रहे हैं जिनको खांसी आ रही है, राइट? रोज खांसी आ रही है, रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ बढ़ रहा है, कंजेशन हो रहा है, एंड कंजेशन के साथ थोड़े बहुत एलर्जिक सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है? Very early stage, you can't just put a mark right now that this is a particular illness, right? Now, what you have seen that such patients are rising every day, right? Here comes the opportunity to tap that particular radius कि okay, मेरे पास अगर इतने हैं तो मेरे बाकी डॉक्टर्स के पास कितने हैं, right? So it's a multiplying compounding effect of a particular I would say disease area, chronic area, जहाँ पे you'll have to first identify your TAM. TAM is what? Total addressable market.
एक बार बना दी, ठीक है. So on the screen, is the screen visible? Clear है यहाँ पर? There are four major, थोड़ा zoom कर सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं. There are four major streams which I have mentioned: काय चिकित्सा, बाल रोग, प्रसूति और संहिता. Right? So in these four streams, if you can look the challenge, solution, idea, impact, अब दिख रहा है clear थोड़ा, right? Just read out the first three. ठीक है? While I narrate, just read out the first three. Challenge is managing chronic illness like diabetes or hypertension. Solution idea: a subscription-based Ayurvedic dietary supplement for diabetic patient. Impact: if you help 10,000 patients reduce dependency on medicine while improving quality of life, you are creating both personal and public health transformations. Right? Now, थोड़ा सा मैं अपने to go here, I'll just explain about what I've done. Traya and Kabeba specifically. Let's say there is a identification of a group, total addressable market. Okay, this is the diabetic market we are tapping. उसके बाद हम consumer profiling करते हैं कि these are the kind of symptoms the consumer has seen: polyuria, polyphasia, polydipsia, etc. This is the kind of HbA1c profile. This is the kind of FBS, BBBS profile, and this is the kind of far more dynamically correct, far more kinetically correct product which we want to make to ensure that all the symptoms of this particular diabetic patient is addressed. Right? So अगर ये narrative आपको समझा, this is how brands work, this is how proprietary Ayurvedic formulations are made. Many people call it a tweak. I call it something which is after studying the persona, whatever is working for the masses, right? बहुत सारे लोगों का हमेशा से ये काफी टाइम से रहा है कि Ayurveda talks about personalization, Ayurveda talks about प्रकृति, विकृति, परीक्षण, and through all those त्रिविद्या, दशविद्या, अष्टविद्या, जिस भी तरीके के आप physician हो, right? Through all these aspects, you then assess the patient and then start treatment, correct? But if you have to replicate the same thing on the masses, right? To give you an example, live 52 days. It is a mass product. Whether it is effective? Yes, it is effective. Does it has clinical trials? Yes, it has clinical trials. Do I need a Prakruti Parikshan to give a live 52 days? No, right? So point बहुत simple कि if Ayurveda has such potential medicines, why not to leverage? And if you guys don't, you will miss out on a larger chunk of what Ayurveda has to offer to the masses, right? Just to move ahead, the second example, right? Balrog mein you can see rising immunity related illness in children. Okay? What is the solution idea? Herbal immunity syrups tailored for children. Impact क्या है? Imagine reducing hospitalization rates among 50,000 children annually while creating a trusted product in pediatric care. थोड़ा सा मैं इसको break down करता हूँ. यहाँ पे बालरोग या फिर पीडियाट्रिशियन किसको बनना है, बालरोग की प्रैक्टिस किसको करनी है, कोई है यहाँ पे? चाइल्ड हेल्थ, ओके. तो देखो सबसे पहली बात कि जब भी आप कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई नरेशन में हो एंड इफ समवन आस्क्स यू टू रेज योर हैंड विद फुल कॉन्फिडेंस शो दैट ओके आई यू आर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर मैटर, दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इवन कंटिन्यू डिलीवरिंग, राइट? सो दो जन दिख रहे हैं और कोई है बालरोग में? 3, ठीक है, राइट? सो डॉक्टर्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? वेरी क्रूशियल. इम्यूनिटी के बहुत सारे सिरप्स बिकते हैं, आपके पास एमआरएस भी बहुत सारे कंपनीज के आते हैं. आपको जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता है आप वो प्रिस्क्राइब करते हो, या तो आपको ट्रस्ट है ऑलरेडी बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड अंडर सम अदर डॉक्टर एंड नो नाउ दैट दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव, right? So you know you have went through all these steps to ensure that in your practice you are using this particular medicine over this particular illness, right? Think about something जहाँ पे आपको ये श्योर शॉट पता है कि ये सिरप तो बिक रहा है, राइट? ये एमआर तो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई है कि इस तरीके की R&D, इस तरीके का फॉर्मुलेशन वर्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन. व्हाई कांट यू डू इट इज माय क्वेश्चन, राइट? किसी ने कभी सोचा that I'll put up a company, I'll make a product? Is there anyone in the house? Perfect, lovely, 5, 6, very good. See, why am I saying this, right? आप RSBK से करो, आप द्रव्य से करो, आप काय चिकित्सा से करो, clinical, non-clinical, etc. Your base is very strong as a BMS doctor, right? You do not need a particular domain knowledge of a product एकदम deep उसमें जाके to make a product.
what benefit you hold right now is, if I am a Balrog Tagnya, I will make products around this. If I am a Kaya Chikitsa guy, I'll make product around lifestyle disorders. If I am a Prasuti person, I'll ensure that I do postpartum, जो बहुत ही less addressed है, right? ऐसा agriculture है, correct? So postpartum, यहाँ पे एक example आपको दिखेगा, प्रसूति में postpartum care often neglected due to affordability and awareness issues. Solution is simple: affordable Ayurvedic postpartum recovery kits with herbal teas, oils and supplements. Format can be anything: capsules, tablets, teas, supplements. का format can be anything. आयुर्वेदा में 5 concepts है, कौन बताएगा? चास्य, लेह्य, पेय, भोज्य, भक्ष्य. Very good. So ये 5 formats है. आपने कोई कंपनी देखी है जो 5 फॉर्मेट पे एक ही फॉर्मुलेशन बनाती है? आप बनाओ. समझ रहे हो? एक त्रिफला चूर्ण को पकड़ता हूँ. त्रिफला चूर्ण अगर मैं सिर्फ त्रिफला चूर्ण कल से बेचना शुरू करूँ पूरे नागपुर में, तो अगर मैं उसका कैप्सूल बना दूं, टैबलेट बना दूं, चूर्ण बना दूं, लिकेबल भी बना दूं, एंड पॉइंट इज इफ आई एम केटरिंग टू ऑल द ऑडियंसेस, तो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी बड़ा हो जाता है ना? एंड एज अ डॉक्टर you know much more better hacks than any other entrepreneur or a non-doctor, non-medical person, right? But अभी क्या हो रहा है, मार्केट की करंट स्टेट क्या है? Those people are leveraging us as a subject matter expert, and we are providing our services there. I know a lot of doctors who are RSPK who work with me currently, and they help a lot in formulation building, right? But eventually, even both of us are working for a company, right? Who's a non-medical, correct? Now, just to share this, right, in my experience of reading 100+ doctors in the last 5 years, what I've realized that doctors especially are confused all the time, right? अगर आप अपनी क्लिनिक कर रहे हो, आप अपनी क्लिनिक कर रहे हो, आप अपना हॉस्पिटल कर रहे हो, अपना हॉस्पिटल कर रहे हो, छोटा मोटा जॉब कहीं और मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं. 20-25 हज़ार ऊपर के आगे महीने के तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग. समझ लो मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ. सो प्लीज थिंक लार्जर. जैसे आपने 3-5 साल का बताया, जैसे आपने 3-5 साल का बताया, आई वुड लव टू हियर नरेटिव्स. इफ समवन सेज कि डॉक्टर, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू शेप माय सेल्फ फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ डॉक्टरप्रेन्योर. डॉक्टरप्रेन्योर इज अ मेड अप वर्ड, रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड. व्हाई? बिकॉज डॉक्टर्स like us are entering into entrepreneurship. Simple. Let's move on to the next slide. नीचे जाइए प्लीज. या थोड़ा और ऊपर. नीचे. या ऊपर ऊपर ऊपर. ठीक है. सो गाइस, in this 1 hour session, right, I cannot cover a lot of things, right? If I have to cover, I'll definitely if you want one-on-one we can discuss a lot of things. बट यहाँ पे एक टेक अवे बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मैं आपको दे रहा हूँ, which is unit economics. आप 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ चाहे आप 1 करोड़ की कंपनी बनाओ, आप 1 लाख की कंपनी बनाओ चाहे आप 10 लाख की कंपनी बनाओ, what is important to understand is unit economics. अगर कोई प्रोडक्ट 150 रुपए का मार्केट में बिकता है तो उसको बनाने में कितना लग रहा है, उसको भेजने में कितना लग रहा है, राइट? उसको मार्केट करने में कितना लग रहा है, राइट? लोगों को पता भी होना चाहिए कि मैंने कुछ बनाया, राइट? और फिर मेरे पास कितना बचा है. सो इट्स अ सर्कल. समझ गए? तो द पॉइंट what I am trying to make is unit economics is everything. अगर बड़े से बड़े बिजनेसमैन का 1 रुपया बचता नहीं आफ्टर डूइंग एवरी सिंगल थिंग, राइट, देन इट्स गोइंग नोवेयर. बिगर एग्जांपल्स, बायजूस, much more bigger examples, right? So even though you feel that you are doing the right thing, पेपर में पैसे नहीं बन रहे हैं तो कुछ होने नहीं वाला. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं. आप जाइए थोड़ा नीचे जाइए अंकुश. सी मेट्रिक, एग्जांपल, वैल्यू, एक्सप्लेनेशन. सबको दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है? If you look at this, right, manufacturing cost of the good is 40 rupees. Let's say hypothetically I'm making a stress, anti-stress tea बना रहा हूँ, herbal tea बना रहा हूँ, a preparation which cost me 40 bucks. उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें डाल दिया अश्वगंधा, ब्राह्मी डाल दिया, शंकुश भी डाल दिया, इस तरीके के से कुछ herbs डाल दिए. फिर मैंने उसको पैकेजिंग के अंदर 5-6 रुपए लगाए.
क्यों? क्योंकि एक कार्टन है, कुछ सैशेज है, आई एम डूइंग 1000 MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी इज गुड इनफ, सो आई एम गेटिंग अ गुड 40 रुपीज में मेरा प्रोडक्ट मेड। 30 दिन का, 1 महीने का मेरा प्रोडक्ट रेडी है। कितने में? 40 रुपीज में। 40 रुपए में मेरा प्रोडक्ट रेडी, मैं बेच कितने में रहा हूं? कितने में बेच रहा हूं? 150 में, करेक्ट? रिटेल प्राइस पर बॉटल। अब क्रॉस मार्जिन कितना निकला? सेलिंग प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 150 रुपए में बेच रहा हूं, 40 रुपए में उसमें माइनस कर दूंगा, मेरा मार्जिन कितना बना? 110। आपको एमआर कितना देता है? कितना देता है एमआर? अच्छा, आप तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया आपने तक, ठीक है। सो 110 रुपए का मेरा क्रॉस मार्जिन बनता है, ठीक है। अब कैक क्या बना? अब अगर कैक इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट एक्सप्लेन दिस गाइस। आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अरे सब करते हैं, क्या बात है। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो सब करते हैं। कितने लोग दवाइयां, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, स्किन केयर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? खरीदते हो? वेरी गुड। सो द पॉइंट इज, हाउ डू यू रीच टू अ पॉइंट जहां पे यू गेट कन्विंस्ड दैट नाउ आई कैन बी अ कंज्यूमर ऑफ दिस ब्रांड? किसी को माइक था नहीं? क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। सो हुज एकता, आप आंसर करोगे? चलो। सो हाउ वुड यू, आपने मान लो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, प्लम है, और क्या यूज करते हो? कोई भी स्किन केयर के लिए मॉइस्चराइजर्स, टोनर्स, क्लींजर्स, राइट फ्रॉम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फाउंडेशंस हो गए, मस्कारास, आईलाइनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बीपीसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे इसी वेबसाइट से खरीदना है? यस, Reviews, गुड। और experienced people by talking गुड। with और authenticity of website. very good. Anybody else would want to answer? Price, very good. Ratings, sorry, compositions, very good. Or why? Because you're a doctor. What else? एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्टिव है, कौन सा एक्टर है, ए लिस्टर है, बी लिस्टर है, सी लिस्टर है। अगर स्वरा भास्कर इसका ऐड करेगी तो शायद मैं ना लूं वर्सेस कैटरीना कैफ। पॉइंट समझ लो? सो एस्पिरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एनी ब्रांड बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट शुड नो व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। सो जस्ट लाइक एज एकता मेंशन, राइट, कि मेरे इतने पैरामीटर्स हैं बिफोर इवन मेकिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ $150। कंज्यूमर उतना अवेयर होके बैठा है आज, तो मेहनत भी उतनी आपको करनी पड़ेगी। बट एक कंज्यूमर किसी नॉन मेडिको को ट्रस्ट करने से ज्यादा किस पर ट्रस्ट करेगा? राइट? सो यू हैव द राइट टू विन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? व्हाट इज माय राइट टू विन, राइट? मेरा राइट टू विन है क्या इसमें? कल को मैं खोलूंगा अगर सनस्क्रीन का ब्रांड, तो क्या वो चलेगा? क्या मैं उसको आयुर्वेदिक सनस्क्रीन बोल के मार्केट कर सकता हूँ? व्हाट इज द काइंड ऑफ रेगुलेशंस, फसाई क्या है, एफडीए क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. But I'll give you one very personal example, right? With Kapiva, I did work on a very unique product. It's called Testofuel Shilajit Whey Protein. शिलाजीत लिया किसी ने यहाँ पर? सुना है? टेस्टोफ्यूल शिलाजीत वे प्रोटीन. वे प्रोटीन क्या करता है सर? गुड, वेरी गुड. माइक दीजिए प्लीज सर को. मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है. मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, मसल ग्रोथ को ग्रोथ करने के हेल्प करता है, वेट गेन के लिए भी हेल्प करता है. ठीक है. और जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. Very good. इट प्रोटीन इंटेक वगैरह जो ज़्यादा लेते हैं. आप जिम जाते हो? क्यों डॉक्टर साहब? हाँ? अरे टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इफ आई से आप जिम गए हो कभी? वर्कआउट किया है बट जिम कर नहीं. जिम कौन कौन गया? अरे हट्टे कट्टे लोग वहां बैठे हैं, मैं कहा यार. चलो
जिम गए हो सर आप? हाँ गया चलो परफेक्ट। कितने साल जिम किया है? हाल नहीं किया तो 4-5 महीने किया है आपने 4-5 महीने जिम? प्रोटीन सप्लीमेंट लिया है कभी? हाँ लिया वेरी गुड। किसी ने वे प्रोटीन सबने लिया है? सुना है वे प्रोटीन के बारे में? आपने वे प्रोटीन लिया है पहले? हाँ लिया कैसा लगता है उसको लेके? लेवर करा तो अच्छा लगता है। समझ रहे हो? कंज्यूमर को क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई बताओ? टेस्ट के साथ क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए और क्या चाहिए? प्राइस। सी दिस इज व्हाट कंज्यूमर का पेन पॉइंट वो कंज्यूमर खुद बताता है। समझ रहे हो? सो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट टुडे इन दिस वर्ल्ड। ऊपर से चैट जीपीटी 4 अदर एआई टूल्स उसके प्लगइन्स it's everything what you want to do today by your sitting at your home comfort of your couch. Drop shipping करना है drop shipping करो. As doctors you can do a lot of things. So just to continue this, आप जिम जाते हो, आपको अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने एक प्रोटीन बनाया है जो आप अगर 25 किलो का बेंच प्रेस मारते हो तो अब आप 30 का मार पाओगे। आप 25 से ऊपर कभी नहीं जाए थे लाइफ में। या फिर मान लेते हैं लुकिंग एट यू डिड 35 के ऊपर आपने बेंच प्रेस आपका थ्रेशोल्ड है कि यार डॉक्टर मैं ना 35 तक मैक्स मारता हूँ, उसके ऊपर तो जा ही नहीं पाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई आप 35 या 40 जाओगे मेरा प्रोटीन लो, बट मैं उसके पीछे रीजंस दे रहा हूँ। रीजन टू बिलीव है ना, कंज्यूमर के जितने पेन पॉइंट्स हैं उनको मैं फुलफिल कर रहा हूँ, राइट? सो बाय डूइंग दैट व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गेनिंग हिज ट्रस्ट। सो अगर 100 लोगों का मैंने ऐसे ट्रस्ट लेके उनको बेचा, 70 लोगों को रिजल्ट दिखा, तो मेरे कितने रिपीट कस्टमर्स हुए? आप समझ रहे हैं? द पॉइंट इज प्रोडक्ट अच्छा कितना भी हो सबको रिजल्ट नहीं आता, सबकी बॉडी अलग है, राइट? एज डॉक्टर हमसे ज्यादा कौन अच्छा समझ सकता है, करेक्ट? सो you know, just to fit the same example in this particular margin structure, I made that protein for $3,400. I did a lot of benchmarking, product design, thinking, market research, commercial value, product cycle, etc. etc. तो उस प्रोटीन को अभी आप सर्च कर सकते हो कबीवा की वेबसाइट पे, 3400 का बिकता है, जिसको हम स्लैश करके 2700 का बेच रहे हैं प्राइस, जिसकी बेनिफिट्स में हम साफ बता रहे हैं कि वो इस तरीके से इतने महीने में ये डिलीवर करेगा, राइट? सो इमेजिन उसका कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं was 3400 की प्रोटीन का कॉस्ट मेकिंग का बॉक्स का इज जस्ट $900, राइट? सेलिंग प्राइस अगर कोई 900 का प्रोटीन बना रहा है, बिग मसल्स के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, बिग मसल्स कितना चीप प्रोटीन बनाता है। फिर ऑल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में सुना होगा, 34-3500 के आसपास के रेंज का आता है। सो हाउ व्हाई देयर इज सच अ ह्यूज गैप, राइट? सो अब आपको एज अ प्लेयर घुसना है, राइट? और लेट्स से कपीवा को एज अ प्लेयर घुसना है प्रोटीन इंडस्ट्री व्हिच इज ऑलरेडी 10,000 CR मार्केट कैप इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? सो ही विल इंश्योर कि कहां से मैं गैप ढूंढ लूं। अब शीला जी डाल के मैंने ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ा दिया, राइट? तो और बाकी सब तो मैं दे ही रहा हूं जो सब दे रहे हैं, जैसे लेबल्स हो गए, क्वालिटी न्यूट्रिशन लेबलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज हाउ this product was developed, the idea was conceived, the market research was done, and then we finally launched it by knowing that our competitors are sitting in this particular area. Now coming back to the unit economics, right? अगर मैं इस प्रोडक्ट पे ₹1 भी ना बनाऊं, आप मुझे अपने पैसे दोगे? मान लो if I come to you and say ma'am I want I start pitching to you and I say कि I want 1 CR, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया बट फिलहाल कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा, नहीं होंगे ना, कोई क्यों देगा पैसा, राइट? सिमिलरली इफ यू लुक एट whatever you make versus whatever you keep, right? There has to be something you keep. Please understand this, ठीक है? अगर आप ₹150 का भी प्रोडक्ट बनाते हो, चलो मैं च्यवनप्राश बना रहा हूँ, च्यवनप्राश सबने बनाया, सब बनाता है, राइट? अपनी जर्नी में च्यवनप्राश सबने बनाया। कितने में बेचते हो च्यवनप्राश? गुड 500 एंड आधा किलो 500 का, 1 किलो कितने का? अगर मैं आपको बोलूं कि उसको बेचने का भी एक तरीका है, शायद वो आप यूज नहीं कर रहे, 50 आंवला के विटामिन सी की शक्ति, अगर 50 आंवला की शक्ति वाला कोई प्रोडक्ट है जो है च्यवनप्राश,
यू नो, एंड इम्यूनिटी पे इस तरीके से काम करता है, ये एज ग्रुप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोफाइलिंग पे आपने स्टैटिक बनाई, एक छोटा सा रील बनाया। रील बनाना बहुत आसान है आजकल, सब बनाते हैं, मैंने कुछ लोगों ने तो देखे भी हैं। तो सारे रील्स बनाते हैं, रील्स बना के आपको सेम प्रोडक्ट के साथ करना है। आपको आज के डेट में इतना इजी हो गया है, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड मेटा, सेट अ एड बजट, 50 से 500 तक का एड बजट आप बड़े इजीली दिन का डालो, और लेट द एड रन, लेट द ऑडियंस गेट एक्वायर्ड। आप लोकल एड रन कर सकते हो। मैं भांडे प्लॉट में रहता हूँ, मेरा क्लिनिक भांडे प्लॉट में है, मेरे उस रोड पे 4 डॉक्टर्स और लगाते हैं, लेकिन मैं एड चलाता हूँ। मैं कंज्यूमर को व्हाट्सएप के थ्रू टैग कर रहा हूँ कि आपका अपॉइंटमेंट इस दिन था, फॉलो अप इस दिन है। मैं कंज्यूमर को जर्नी दे रहा हूँ, मुझे पता है ना कंज्यूमर को हाइपोथायराइड है, और मुझे पता है ना कांचना को गुल बेच रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर को याद दिलाऊंगा अगले महीने कि तूने लिया था 30 दिन पहले 25% ऑफ, आप खरीद। पॉइंट समझो। सी, इट्स वेरी इजी टू डू बिजनेस इन टुडेज वर्ल्ड। स्टार्ट लेवरेजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अगर आप क्लिनिक करते हो तो क्लिनिक का एक टेक्नो मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, उसमें सारी चीजें आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। क्यों? बिकॉज वी आर वेरी बैड एट कंपाउंडिंग। किसको याद है कि मेरे कल कितने पेशेंट्स आते हैं? वैसे आप बता सकते हैं प्लीज? अब मेरे कल ओपीडी में मैंने इतने पेशेंट्स देखे, किसको पता है? या फिर मैंने एक महीने में इतने पेशेंट्स देखे ओपीडी में। इतने चुप हो सबके सब, इतना बताओ कितने पेशेंट्स देखे? कोई ओपीडी जाता है? कोई तो जाता होगा ओपीडी। यहाँ पे सर बैठे, सर थोड़ी देर के लिए अगर वो कर दे तो बता पाओ शायद आप, बट मान लेते हैं कि यू ऑल गो टू ओपीडीज एंड ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी। ग्रुप ए क्या करता है? रोज अपने पेशेंट्स गिनता है और प्रोफाइल करता है कि मेरे पास डायबिटीज के 10 है, हाइपरटेंशन के 20 है, थायराइड के 10 है, इस तरीके से। ग्रुप बी क्या करता है? वो झूम के खेल रहा है, पैसे बहुत कमा रहा है, बट प्रोफाइलिंग कुछ नहीं किया उसने। इसका ओपीडी, इसका आईपीडी, इसका हॉस्पिटल बहुत फेमस हो गया, बट उसको प्रोफाइलिंग करने नहीं आ रहा है। वो बोलता है मल्टी स्पेशलिटी और उसमें खुश है। बट इसने, इस ग्रुप ए ने क्या किया? बिकॉज they were doing a lot of health analytics, data profiling, they now know कि उनके पास हाइपरटेंशन के पेशेंट सबसे ज्यादा है। हाइपरटेंशन के पेशेंट सबसे ज्यादा है। जैसे ही उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने मॉड्यूल्स बनाए, उन्होंने एक तरीके से अपने आप को शोकेस किया उस तरीके से, एंड नाउ इनके पास जो कॉम्पिटिटर के पास जो हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, आफ्टर नोइंग दैट दिस इज स्पेशलाइजिंग और दिस इज गिविंग मोस्ट रिजल्ट्स फॉर हाइपरटेंसिव केसेस, शिफ्ट हो गए। This is what happens in GPs. ठीक है? क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, GPs में यही होता है। आपका पेशेंट वर्ड ऑफ माउथ, आपका पेशेंट इधर मार्केटिंग थ्रू एड्स, आपका पेशेंट इधर थ्रू गूगल्स SEO ऑप्टिमाइजेशन, आपका पेशेंट डाइवर्ट इस तरीके से होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? Why starting a business is very important for doctors today. You will get very clear पिक्चर इसके बाद से, ठीक है? मान लो एज अ डॉक्टर किसी क्लिनिक में एक पेशेंट स्टेप इन करता है, गाइस प्लीज डू लेट मी नो हाउ मच टाइम आई हैव, उसके हिसाब से, ठीक है? लास्ट 5-10 मिनट्स एंड विल क्लोज। सो imagine there is a patient coming into a clinic in an offline setup and the patient says, डॉक्टर कसं तरी वाटते, जळजळ वाटते, मळमळ वाटते आणि मला खोकला पण आहे, ताप पण आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दोज वर्बैटिम्स को पिक्चर करो। डॉक्टर ने क्या किया? अपनी बुद्धि लगाई, कंसल्टेशन की, एमआर ने जो 4-5 मेडिसिन दिए थे जिसमें मार्जिन अच्छे हैं, उनमें से 3 मेडिसिन को यहाँ पे क्विकली फिट किया, पुड़िया बांधी, दिया। ये प्रोसेस है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये प्रोसेस होने के बाद पेशेंट वो पुड़िया लेके घर जाएगा, 5 दिन खाएगा, या तो ठीक होगा या तो वापस आएगा। पैसे अगर चीप लगेंगे तो वापस आएगा, नहीं तो किसी और डॉक्टर को ढूंढेगा जहाँ पे सस्ता है। मानते हो? अगर ठीक नहीं होता तो। बट अगर डॉक्टर ने उसको ब्रांड नेम वाली मेडिसिन दी, ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है, 3 दे दिए, उसने बोला चलो स्किन का कोई इशू है ना, कोई स्किन का रोग है, सोरियासिस पकड़ लेते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। इट्स अ रिपीट चर्निंग साइकिल प्रोडक्ट, और इट्स अ रिपीट चर्निंग साइकिल इलनेस वेयर द पेशेंट्स look for a lot of solutions and still are getting, you know, confused what to continue. Okay, so that is the biggest challenge as a physician कि अगर मैंने ब्रांड नेम वाले प्रोडक्ट्स दे दिए तो शायद पेशेंट वापस आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, रिजल्ट आ भी जाएगा तो वो मेडिकल वाले के पास जाएगा,
बोलेगा ये डब्बा चाहिए 3, समझ रहे हो? यू लूज अ पेशेंट देयर। आपको पता भी नहीं है आपके पीछे कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो सेम चर्निंग प्रोसेस में आपसे बाहर जा चुके हैं, जो कि आपके पास आने चाहिए थे। आपके पास अगर उनका नंबर होता, ईमेल आईडी होता, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करने का जरिया होता, एड्स रनिंग करने का नॉलेज होता, तो आज आपकी क्लिनिक की प्रैक्टिस इजीली 2x हो जाती। कैसे होती? इन छोटे छोटे टैक्टिक्स के थ्रू, राइट? नाउ टेक अनदर सिनेरियो and with this I'll be completing the example and this will be the final example. इसके बाद we'll do a 5 minutes questionnaire, ठीक है? तो इसके सिनेरियो आप ऐसा पकड़िए कि डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने एसेस किया। लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हेयर लॉस, एलोपेशिया, ठीक है? एलोपेशिया के कितने स्टेजेस होते हैं? 5। उन 5 स्टेजेस में से मेरे पास एक पेशेंट आता है 3rd स्टेज में। उस 3rd स्टेज का पेशेंट जब मेरे पास आता है, उसको स्कैल्प में इश्यूज है, लेट्स से सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ है, स्टिकी इची डैंड्रफ है, फ्लेकी है, थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड डॉक्टर ने उसको एनालाइज किया, 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ के लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करो, आप ये मिनॉक्सिडिल 5% भी लो, एक काम करो आप ना रस मज्जा पाचक पट्टी भी लो, अस्थि मज्जा पाचक हम देखेंगे सोचेंगे, बट आप ये स्टार्ट कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? And there are multiple layers which the doctor created to ensure that the patient knows क्या क्या वो बेच रहा है या क्या क्या वो दे रहा है, क्या क्या वो सजेस्ट कर रहा है। बट डॉक्टर का इसमें एक तरीके से इंटरवेंशन सोचो कि द सेकेंड डॉक्टर और द ग्रुप ए इज नाउ सेंडिंग रिपीटेड मैसेज 13 दिन, 14 दिन, फिर 30वें दिन पे, 40वें दिन पे, क्योंकि उसको कंज्यूमर का जर्नी पता है, हैबिट पता है कि अगर मैं इतना सब दे तो देता हूँ, बट वो शायद एक दिन छोड़ के खा रहा है, हफ्ते में 4 दिन ले रहा है, रोज दे नहीं पा रहा। सो देयर इज अ adherence issue always, right? So because of that particular adherence issue, we as physicians should have a way to nudge them. Best way to nudge them is through CRM, customer relationship management, which is sending them nudges over WhatsApp, emails, SMS, showing them ads of your own clinics or your own hospitals, or you as a personal brand. कस्टमर को जैसे रिकॉल बैठेगा, शो गिव देम द राइट सेट ऑफ कॉल टू एक्शन। एक एग्जांपल देता हूं कि इसी डॉक्टर ने जो ग्रुप ए में डिफाइंड है, वो इतना सब कुछ इकोसिस्टम देता है कंज्यूमर को, वो डॉक्टर एक दिन मैसेज कर रहा है कंज्यूमर को 15 डेज बाद कि हे योर अपॉइंटमेंट हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो एंड योर डॉक्टर इज वांटिंग यू टू डू ऑल ऑफ दीस टेस्ट्स, राइट? एंड पोस्ट डूइंग ऑल ऑफ दीस टेस्ट्स जस्ट कम डाउन टू द क्लिनिक एंड विल हैव अ कंसल्टेशन। ये आप बोलता है कोई, आप कोई बोलता है किसी पेशेंट को? नहीं बोलते हो, बट बोलने से क्या होगा? या तो आएगा या तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे चांसेस किसके ज्यादा है? आने के ज्यादा। वेरी गुड। सो अगर आने के ज्यादा चांसेस है, ये आपको पता है, then start leveraging this power, and this is something which is very important for us as new generation Ayurvedic doctors to grasp and understand as soon as possible. आप MD कर रहे हो, which is the biggest epitome of cadre for a doctor to be in the space of Ayurveda, ठीक है? So ये MD को आप waste मत जाने दो, right? Because this is a orientation, setting the stage is very important. 3 साल कहाँ कब कैसे जाएंगे पता नहीं चलेगा, because you have a really good leadership, right from the trustees to the higher management, middle management, lower management, they will just make you feel so comfortable कि आपको पता भी नहीं चलेगा 3 साल गए किधर, ठीक है? So all the best. With this, I'll just conclude my session. I'll open the floor for questions for the next 5 minutes. Yeah, if there are any questions, would be more than happy to answer. Thank you, doctors. सोचो, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। So I think thank you so much, doctors. On behalf of that, how to enter this? How to enter into this field? Generally, these people are just passing out the, they are completing the PGs, right? So, 2 fields are there. One is the like administrative work, Right. which we can say non-medical work, right? And the second is
means clinical trials plus Management plus management work. So how you can suggest these people to enter into that area? Sure. I think a very good question, sir. First of all, I would like to congratulate every single person right here that you have leadership like Dr. Chandalia sir, right? जहाँ पे इतना clear direction आपको मिलता आएगा. You will see, right? Particularly if you are a person who have just graduated, right? BMS आपने पास कर लिया, आप confused हो क्या करना है, आपने अंडर प्रैक्टिस कर लिया, क्लिनिक किया. Now you are wanting to get into jobs as Doctor mentioned कि मुझे R&D के jobs करना है, मुझे researchers के jobs करना है, मुझे clinical data documentation के jobs करना है. So you have to start looking actively by a mindset of learning. कि per month maybe I'll get 25 or 30, but I'll get a learning curve for a year. एक साल में मैं इतना अच्छा documentation specialist बन जाऊंगा, एक साल में मैं इतना अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन जाऊंगा, इस पर्टिकुलर 1-2 ईयर फ्रेम में मैं इतना अच्छा इस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, राइट? जस्ट द एंट्री पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब पोर्टल्स. बेस्ट वन इज LinkedIn because people like us are on LinkedIn. I have hired more than 100 doctors in the last 1 year. So if you know a doctor who was hired through me, do give me a chair anytime and we can discuss whether you want to get hired. So there is a lot of job opportunities where companies like Kapiva after COVID are trying to get into. Kapiva है, TAC है, which is the Ayurveda company, AIML है, Sandu है, Imami है, Dabur है, Himalaya है. Multiple layers of companies give a lot of scope to Ayurvedic doctors. Right from research, right from documentation, right from health insurance sectors, right from claim settlement sectors, right, to clinical trials and research sectors. Entrepreneurship कोई नहीं छोड़ना चाहता as a non-medico. उसको पकड़ो as a medico. हमको यही घुमाया जाता है, एक पाँचों खेलो खाओ, ठीक है? So one takeaway is also this कि आप इसको आप ऐसे समझो कि अगर एंट्री करनी है ऐसी कोई चीज़ों में, so have a very long vision, very broad vision, and the vision should be very magnanimous कि मुझे 50,000 पांडु पेशेंट्स को ठीक करना है, या फिर मुझे 50,000 पेशेंट्स पे ऐसे काम करना है कि उनके सोरियासिस का अगर ये सिम्टम्स है, उसके ये ग्रेड्स हैं, तो वो यहाँ पहुँच जाए. एंड दैट इज सो रेप्लिकेबल दैट ये 50,000 का 50 लाख भी हो सकता है इन द वर्ल्ड. तो उस टाइप की सॉल्यूशंस, उस टाइप का विजन अगर आप रखते हो, डेफिनेटली you would want to then from your current state to your desired state work from top to bottom funnel, right? With the last few sentences and just to conclude the answer, I'll leave you guys with a question. क्या डॉक्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं? क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं? ना क्यों बोल रहे हो यार? यही तो see this is the perspective. आपके हाथ में, you are someone who your current state is in your hand. Make a desired state. Desire तो करो. मैं ये कह रहा हूँ. वहां तक पहुंचने के लिए शार्क टैंक देखते हो, आप लोग रैंडम एपिसोड्स देखते हो, खुश होते हो, एक्साइटमेंट में आते हो कि यार कितना, बिकॉज हु डजंट लाइक मनी, राइट? फाइनेंशियल सुन के वी ऑलवेज हैव दिस fascination, right? So desiring is very important, and with that I would like to conclude. Thank you so much, doctors. Thank you so much. This is my turn.